So hello friends, in this lecture we will start with the balance of payment in the economic series. See, what is balance of payment? So as the name suggests, something which is related to balance. Okay. So here we will discuss the balance of payment. Balance of payment is nothing but it is a systematic records of all imports and exports among the countries या between the two countries बोल सकते हैं, that is the balance of payment. ठीक है. So because generally we import something from different countries or we export something to the different countries, या हम कुछ बाहर भेजते हैं या कुछ बाहर से मंगाते हैं in terms of goods and services. ठीक है. So that is a balance of payment in economy. देखिए, the balance of payment commonly known as BOP, balance of payment commonly known as BOP, is the summary of all the international transaction. See, note this point, international transaction, because our country is a open economy, means we are trading with the rest of the world also. Okay? International transaction made between the entities in one country and the rest of the country over a defined period of time. So over a defined period of time means you can say one financial year. ठीक है, one financial year, एक साल में जितना ट्रेड होता है जिस कंट्री से या किसी भी कंट्री के साथ, so that is a balance of payment. ठीक, all the transactions are recorded in a dollar. It means कि whatever the trade we are doing with other countries, it is recorded in dollars. ठीक है, because dollar is a internationally accepted currency. Okay. BOP follows the double entry like debit and credit. So आपको इस बात से अच्छे से अवेयर होंगे, बैंक की पासबुक आपने देखा होगा, एक होता है डेबिट एंट्री, एक होता है क्रेडिट एंट्री. डेबिट मीन्स कि जो पैसा आपने निकाल लिया, दैट इज डेबिट. क्रेडिट मीन्स कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया, दैट इज द क्रेडिट. दैट इज सिंपल. सो इन सेम वे द BOP ऑल्सो फॉलो अ डबल एंट्री. इसको डबल एंट्री बोलते हैं हम. डेबिट होता है या क्रेडिट होता है. अब now the question arises, what is credit in terms of BOP? Those transactions which bring dollars in our hands, means कि you are exporting something to other countries and in back they are giving you payment in terms of dollar, so that is a credit transaction. ठीक है. What is debit? Those transaction which loses dollar, it means कि in this case you are importing the goods and services. In that case you are exporting the goods and services. उधर पे हम बाहर सामान भेज रहे थे तो डॉलर हमारे पास आ रहा था. इधर पे हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं. लेट्स सपोज यू आर परचेजिंग अ डिफेंस इक्विपमेंट्स या डिफेंस मिसाइल या एनीथिंग फ्रॉम द USA. इट मीन्स यू आर इम्पोर्टिंग. आपने कोई डिफेंस एयरक्राफ्ट खरीदा, कुछ भी खरीदा, in place you have to pay that country in terms of dollar. So in debit, those transaction which loses the dollar, means कि इंडिया से in form of dollar आपको उस कंट्री को पे करना पड़ेगा. That is the point. Now come here, there is a one case and second case. दो सिनेरियो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के. when the export is greater than import, समझे बात को. जब एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है इंपोर्ट से, मतलब कि आप चीजें बाहर ज्यादा भेज रहे हो. मींस कि एग्जांपल ले लीजिए, आप USA में ज्यादा चीजें सप्लाई कर रहे हो, जर्मनी में ज्यादा चीजें सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, एनी गुड्स और एनी सर्विसेज. ठीक है. सो इट मींस कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है. इधर से थोड़ा सा समझते हैं. एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट. ये है आपका एक्सपोर्ट, ये है आपका इंपोर्ट. आपने एक्सपोर्ट किया $1000 का, सपोज करिए कुछ भी चीजें एक्सपोर्ट किया. इंपोर्ट किया आपने $500 का, कुछ भी चीजें उस कंट्री से मंगाया. सो आप $500 के पॉजिटिव में हो गए ना. सो दैट इज अ क्रेडिट BOP व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट. सेकंड सिनेरियो देखिए, सेकंड केस देखिए, व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. अब इसको बदल दीजिए, व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. अब इसको यहां पे हम उल्टा कर देते हैं, जस्ट अपोजिट. सी, लेट्स सपोज व्हेन योर इंपोर्ट इज ऑफ $1000. ठीक है, बाहर से कुछ आप खरीदते हो, दैट इज ऑफ $1000. मीन्स कि आपकी कंट्री से $1000 आपने कंसर्न कंट्री को दिया.
और जो आपका एक्सपोर्ट है वो है $500 सपोज करिए, केस जस्ट उल्टा हो गया। सो -$500 से आप नेगेटिव चले गए, सो दिस इज अ डेबिट बीओपी। सो इन डेबिट के केस में जनरली नेगेटिव हो जाता है और क्रेडिट के केस में जनरली पॉजिटिव हो जाता है। दोनों केस समझ में आए? फिर से एक बार बोल देता हूं, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट इट इज अ क्रेडिट बीओपी, एंड व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट इट इज डेबिट बीओपी। और जनरली ये नेगेटिव में होता है, और ये नेगेटिव में हो और ये पॉजिटिव में होगा। सो दिस इज अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी, सो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, या कितने टाइप्स के होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी, सो जनरली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे दो टाइप के हैं, वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड वन इज द current account. To see, in capital account we will see, in the capital account we have classified into three category, that is a visible trade and invisible trade and unilateral transfer. ठीक है, इसको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, आगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके बीच में होता है? सो जनरली इट अकर्स बिटवीन दी, इट कैन बी अ इंडिविजुअल, लेट्स सपोज आई एम ए इंडिविजुअल, आई एम ट्रेडिंग विथ अनदर कंट्री, या परचेजिंग गुड्स या सेलिंग माई गुड्स टू अनदर कंट्री। सो जनरली परचेज होता है, एक आप इंडिविजुअल आप बाहर से परचेज कर रहे हो कुछ भी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स, किसके बीच में होता है ट्रांजैक्शन? ठीक है, या फिर इंडिविजुअल हो सकता है, मैं अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा हूँ या फिर कुछ सामान मंगा रहा हूँ अमेरिका से, या फिर फर्म मीन्स कंपनी, या फिर फर्म ट्रेडिंग कर सकती है यूएस के साथ, जर्मनी के साथ। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है एंड दैट कंपनी इज ट्रेडिंग विद द यूएस या जर्मनी XYZ एनी कंट्री, या फिर गवर्नमेंट। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट। यही तीनों के अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करते, या इंडिविजुअल करेंगे, या कोई कंपनी ट्रांजेक्शन करेगी फॉरेन कंट्री के साथ, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करेगी फॉरेन के साथ, कुछ भी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड दीज ट्रांजेक्शन मस्ट बी इकोनॉमिक इन नेचर। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो भी होंगे अदर कंट्री से, जो तीन लोग करेंगे, या फिर इंडिविजुअल करेगा, या फिर फर्म करेगा, या फिर गवर्नमेंट करेगी, सो दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी इकोनॉमिक इन नेचर, मीन्स कि सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यू होनी चाहिए उन ट्रांजेक्शन की। देखिए, सो इन दैट वो भी दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सी, विजिबल ट्रेड, अनदर इज इनविजिबल ट्रेड, another one is capital trade and another one is unilateral transfer. So जितने भी जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 4 कैटेगरी में होते हैं। जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू मेजरली 4 कैटेगरीज। अब इसी 4 कैटेगरीज में ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वेदर डन बाय इंडिविजुअल, वेदर डन बाय द फर्म, वेदर डन बाय द गवर्नमेंट, इट कम्स अंडर दिस 4 डिवीजन: विजिबल ट्रेड, invisible trade and capital transfer, and fourth one is, this is fourth one, 3, and this is fourth one, this is fourth one is unilateral transfer. ठीक है, so all the transaction made are the categorized into any of the following heads, thus account are maintained, या balance of payment account are maintained। जो जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे इसी 4 हेड्स के अंदर होंगे, इधर विजिबल ट्रेड, इधर इनविजिबल ट्रेड, और इधर कैपिटल ट्रांसफर, इधर यूनिलैटरल ट्रांसफर। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, कैपिटल ट्रांसफर एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर में क्या क्या चीजें होती है, इसको वी विल स्टडी इन मोर डिटेल। सो सी, नाउ we will discuss the classification, that is visible trade, invisible trade and capital transfer and unilateral transfer. 4 classifications of balance of payments were there. ठीक है, so in visible trades all kind of material goods comes under this category, means कि whatever the things which you can touch it, let's suppose I can touch this marker, if I am exporting this marker to another country, that will come under the visible trade, means कि example के तौर पे लिखा हुआ है राइस एंड कॉटन। ठीक है, ये अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये आएगा हमारी विजिबल ट्रेड की कैटेगरी में। इसी का अपोजिट ले लीजिए, लेट सपोज हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सो दैट क्रूड ऑयल यू कैन टच इट, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द विजिबल ट्रेड कैटेगरी। सेकेंड इज अ इनविजिबल ट्रेड की कैटेगरी। देखिए, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विल कम अंडर दिस कैटेगरी, मीन्स की गुड्स यू कैन टच इट
एंड सर्विसेज यू कांट टच इट. लेट सपोज बैंकिंग सर्विस है आपका, कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस सर्विसेज है, BPO सर्विस है. सो दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ द सर्विसेज. सो सर्विसेज in some case you export services and in some case you import services as well. So it includes both exports and imports. Next देखिए category. Next third category is the capital transfer. So there are the different types of the capital transfer also there under the this balance of payment. देखिए, one is the capital transfer, another is the foreign direct investment. आपने सुना होगा FDI के बारे में. Next is the foreign portfolio investment. ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अभी आपको आगे डिफरेंस बताऊंगा. देखिए, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बोरोइंग, मीन्स कि यू आर बोरोइंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दैट इज एक्सटर्नल बोरोइंग. लेट सपोज इंडियन गवर्नमेंट हैज बोरोड फ्रॉम US या कोई अदर कंट्री से एज ए फॉर्म ऑफ लोन लिया, सो दैट इज अ एक्सटर्नल बोरोइंग. एंड फॉरेन एड मीन्स कि in some cases a different country provide help and aid to the concerned country, that is a foreign aid. So these all are the category of your capital transfer. Next लास्ट बचा हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर. यूनिलेटरल मीन्स सिंगल साइड. ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर बोथ साइड हो सकता है, यूनिलेटरल इज अ सिंगल साइड ट्रांसफर. ट्रांसफर ऑफ द फंड्स इन टर्म्स ऑफ रेमिटांसेस is a major example of unilateral transfer. So what is remittances? Remittances means ki let's suppose I am working in a US and I am a citizen of India, but I am working in a US, so I am sending my money to my concerned country or my home country, that is a remittances. So ठीक है, transfer of the funds in terms of remittances. For example, a person working somewhere US, Germany या any other country and sending back money to their home country, that is a remittances. फिर से बोल देता हूँ, let's suppose मैं अमेरिका में काम करता हूँ and I am working in a US, अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ and I am sending back money to my home country, so that is a remittances. तो मैं एक बार भेज दूंगा पैसा, बाद में वापस थोड़ी ना अमेरिका में भेजूंगा, so that is a remittances. ठीक है, ओके. अब आगे देखेंगे हम इसमें इसके आगे के डिफरेंस देखेंगे फॉरेन FDI और so now we'll see the difference between what we have stopped in there, foreign direct investment and the foreign portfolio investment. See the difference between these two word, foreign direct investment and foreign portfolio investment. ठीक है, so आपने कई बार सुना होगा FDI न्यूज़पेपर एंड ऑल दिस में आपने देखा होगा. नाउ देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ POP में, जो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब एग्जाम्पल देके आई विल मेक यू क्लियर. यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं. सी आपने दो कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, एक वॉलमार्ट कंपनी का नाम सुना होगा. ओके, इट इज़ अ US बेस्ड कंपनी. और फ्लिपकार्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. ठीक है, सो सपोज करिए इफ़ US कंपनी है वॉलमार्ट, परचेजेस दी शेयर्स, बाइज द शेयर्स ऑफ द फ्लिपकार्ट कंपनी. जो वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? वॉलमार्ट कंपनी है आपकी US की, और फ्लिपकार्ट कहाँ की है? फ्लिपकार्ट है आपकी इंडिया की. US की कंपनी वॉलमार्ट इंडिया की कंपनी जो फ्लिपकार्ट है उसके शेयर्स खरीद लेता है. सो फिर क्या होगा? देखिए, शो व्हाट हैपेंड, फंड्स फ्रॉम द US कम टू इंडिया. जो US से पैसा है वो इंडिया आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ FDI. ठीक है, दिस इज FDI. ठीक है, यही हुआ आपका FDI कि US की कंपनी ने इंडिया की कंपनी का शेयर खरीद लिया. सो दैट इज आप बोल सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ FDI. सो इसमें देखिए दो चीज होंगी इसमें. सो द टू थिंग्स हैपेंड हियर. वन, द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप. लेट सपोज फ्लिपकार्ट का 30% का या 40% का शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट की कंपनी ने खरीदा. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप भी हो गई. 30% का ओनर बन गया आपका, या 40% जितना भी परसेंट के शेयर्स खरीदे उतने परसेंट का ओनर बन गया कौन? उतना परसेंट का ओनर बन गया आपका वॉलमार्ट बन गया. और वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? वॉलमार्ट है US की कंपनी, और इंडिया की कंपनी का उतने परसेंटेज का ओनर बन गया. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स. ठीक है, सो इन द ओनरशिप ट्रांसफर्स, सो डेफिनेटली एसेट विल ऑल्सो ट्रांसफर इन दिस केस. सो दिस इज FDI. कोई भी कंपनी ले लीजिए, कोई भी, फिर से देखिए, फिर से इसको समझते हैं. कोई भी फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया की कंपनी के शेयर खरीद लेती है, दैट इज अ काइंड ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दैट इज काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब कंपनी किसी भी फील्ड में हो सकती है, फार्मास्यूटिकल्स में हो सकती है,
कॉस्मेटिक्स में हो सकती है, किसी भी फील्ड की इंडियन कंपनी हो सकती है जिसके शेयर्स फॉरेन कंपनी खरीद ले, दैट इज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब इसमें क्या है, इसमें फिर वही एग्जांपल दे के समझाते हैं, थोड़ा सा चीजें डिफरेंस है। When the foreign investors, let's suppose फॉरेन का कोई इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, ठीक है, when the foreign investor invest in a stock market, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और परचेज द बैंक सिक्योरिटीज, देखिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में हम पढ़े थे ये चीजें, एंड परचेज द बैंक सिक्योरिटी, इट इज नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इधर पे क्या होता है, इधर डिफरेंस क्या है, इन दिस टाइप ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, सिर्फ आपने स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स खरीद लिए कोई फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के, बट ओनरशिप का ट्रांसफर यहां पे नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। अब ये इसका स्पेशलिटी है, देखिए द स्पेशलिटी ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओवर द एफडीआई इज दे कैन विड्रॉ, हु कैन विड्रॉ, जो फॉरेन की कंपनी है, दे कैन विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेट सपोज यूएस के कंपनी ने इंडिया की कोई कंपनी के स्टॉक खरीदे, वो कभी भी उसको उस स्टॉक से अपना पैसा निकाल सकती है, विड्रॉ कर सकती है, दैट इज अ स्पेशलिटी ओवर द एफडीआई, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हुआ, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दिस केस यहाँ ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप और एसेट दोनों होता है एफडीआई में, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप नहीं होता, और फॉरेन की कंपनी कभी भी अपना पैसा मनी विड्रॉ कर सकती है, जो जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, लगाया है पैसा, या फिर कोई बैंक की सिक्योरिटी खरीदी है। सी नाउ विल डिस्कस व्हाट इज फॉरेन एड एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। दिस इज वेरी सिंपल। फॉरेन एड इज समथिंग व्हेन यू रिसीव फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इन द नेम ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखा होगा आपने बहुत बार, बहुत सारी कंट्रीज इन द नेम ऑफ असिस्टेंस दूसरी कंट्री को मदद करती है, या दैट इज द फॉरेन एड, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। सो व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम फ्रॉम एनी कंट्री और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग। जैसे कि हमने देखा था 91 की जब फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी इंडिया में, सो हमने बोरो किया था, वर्ल्ड बैंक से बोरो किया था, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग। सी सो नाउ सी, जो हमने देखे थे दो, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो ठीक है। सो करेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। सो दीज ऑल थ्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करेंट अकाउंट, हमने देखा था पहले। एंड एक जो कैपिटल ट्रांसफर है, दैट कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके। See, now we'll discuss the balance of payment crisis. Crisis is something which is negative in nature, ठीक है, निगेटिव इन नेचर होगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखिए उसको एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं। सी जैसे बीओपी में हमने क्या देखा था, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में देयर इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी वैल्यू, या फिर गुड्स का होगा या फिर सर्विसेज का होगा, ये चीज देखते हैं। तो लेट सपोज आपका जो इंपोर्ट है, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज 1000 डॉलर, ठीक है। कुछ भी चीज आपने जो इंपोर्ट की, बाहर से मंगाई, इट मीन्स कि आपने अदर कंट्री को 1000 डॉलर भेजा, और जो आपका एक्सपोर्ट है वो है 500 डॉलर का। इट मीन्स कि ये क्या है, दिस शोज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मीन्स import is high and the export is less, मीन्स कि आपकी कंट्री से जो डॉलर है वो ज़्यादा बाहर जा रहा है और बाहर से अंदर कम आ रहा है, मीन्स आपकी कंट्री में। सो इन दैट केस दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। whenever there is a deficit in the current account, see this is a current account, whenever there is a deficit in current account, in such condition this is called a balance of payment crisis. In that case, in that time the country can borrow from the international monetary fund. अब जब क्राइसिस आ जाती है कंट्री में, तो कहाँ से कंट्री बोरो करेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जो कि हमने प्लानिंग कमीशन की क्लास में देखा था कि व्हेन पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मनमोहन सिंह वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, वी हैव बोरोड फ्रॉम द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने बोरो किया था
1991 के आसपास पे, जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, या कह लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उसके बाद क्या आया था? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। वो चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 91 के आसपास, 1991 के आसपास की बात है। अब देखिए, सो दिस इज, ये कहानी समझ में आई। अब कुछ हम करेंसीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट करेंसीज जो जनरली देखा गया है वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट करेंसीज। उसमें पहला करेंसी है यूएस डॉलर। आई होप यू ऑल अवेयर अबाउट द यूएस डॉलर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट करेंसी है द यूरो भी बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है, यूरो भी नोट करके रखिएगा। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट करेंसी है वो हमारी जापानीज येन है, जापानिश येन, ये जापान का करेंसी है, जापानीज येन। और जो फोर्थ वन की जो इंपॉर्टेंट करेंसी आती है वो ब्रिटिश पाउंड होती है, इंपॉर्टेंट करेंसी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हो सकता है इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है सोशल फैक्टर हो सकता है पॉलिटिकल फैक्टर हो। इन इकोनॉमिक फैक्टर में जनरली देखा गया है कि कंट्री में जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाती है। जब फॉल इन द डिमांड, कह लीजिए फॉल इन द डिमांड, जो आप बाहर एक्सपोर्ट करते थे उस चीज़ का डिमांड बाहर की कंट्री में कम हो गया तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ सकती हैं। सोशल के केस में देखिए कि जब हमारी डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप कंट्री से ज़्यादा कम्पीट करती है या फिर कंजम्पशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, सो दैट इज़ अ सोशल कॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। लास्ट है हमारा पॉलिटिकल कॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखा था 1991 में जब पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट आने के, बैलेंस ऑफ क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट crisis, and by this we have completed the balance of payment chapter. So let's meet in our next lecture. Till then, thank you.